और हुंकार दिए आज बदर दिन आज बोले जी धरण दबदबा আছে সঁচাকৈ দেখিলে দুখ লাগে যে অসমত আজি অসমীয়াৰ স্থিতি কি গতিকে ৰাইজ আজি 40টা অধিক বিধানসভা তেওঁলোকৰ দখলত আছে আৰু কংগ্ৰেছে এটা সময়ত কি কৈছিল হুইজ বদৰ দিন বুলি কৈ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আদায় কৰি 15 বছৰ শাসন কৰিলে কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত কিঞ্চিত মানুহ কাম নকৰিলে আৰু সেই মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই আজি বদৰ দিনৰ লগত গোপনে মিত্ৰতা কৰিছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ দুয়োটা দলে সন্মিলিতভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ সপোন দেখা পাইছে ৰাইজ আৰু ভাবি চাওক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি ধৰণৰ বক্তব্য ৰাখি অসমীয়া জাতিৰ পৰা অসমীয়া মানুহৰ পৰা বিশ্বাস জন্মাই 15 বছৰ শাসন কৰে আৰু আজি তেওঁ যেতিয়া অসমীয়া মানুহৰ তেওঁৰ পৰা যেতিয়া আস্থা আৰু বিশ্বাস হেৰাই গ'ল তেতিয়া বদৰ দিনৰ কাষ চাপি অসমীয়া জাতিটোক চিৰদিনৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ এক গভীৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে গতিকে ৰাইজ এই ষড়যন্ত্ৰক আমি যদি ৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ পাৰিম কিয়নো 40টা অধিক বিধানসভা সমষ্টি আজি বদৰ দিন আজমলৰ দখলত আছে আৰু কংগ্ৰেছে যদি 30টা জিকি যায় বা 25টাও জিকি যায় হয়তো চিফ মিনিষ্টাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি আমাৰ বদৰ দিন চাব হ'ব পাৰে গতিকে ৰাইজ এই বদৰ দিন চাবক আমি যদি ৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এটাই আমাৰ ৰাস্তা আছে যে কংগ্ৰেছৰ যিমান সব পাৰ্টি নিৰ্বাচনত এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সকলোবিলাক পাৰ্টিক ৰাইজে পৰাজয় কৰক আৰু তাৰ পাছত দেখিব বদৰ দিন আৰু দিছপুৰৰ কাষ চাপিব নোৱাৰিব গতিকে ৰাইজ এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন পাৰ্টিক পৰাভূত কৰাটো অসমবাসীৰ এক গভীৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি মই ভাবোঁ অন্যথায় যদি আমি ভৱিষ্যতে আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক কি জবাব দিম কিয়নো তেওঁলোকে ভৱিষ্যত গৈ অন্ধকাৰৰ বাহিৰে পোহৰ কেতিয়াও দেখা নাপাব ৰাইজ গতিকে ৰাইজ আজি সময় আহিছে এই সময়ত যদি আমি শুদ্ধভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু আমাৰ যি ভুল হ'ব সেই ভুল আৰু আমি কেতিয়াও শুধৰাব নোৱাৰিম গতিকে ৰাইজ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় কৈ আহিছোঁ যে এইবাৰ এই নিৰ্বাচন অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধ বুলি কৈছোঁ এই যুদ্ধত অসমীয়া মানুহে বিজয় হ'বই লাগিব আৰু মোগলক আমি দমন কৰিবই লাগিব গতিকে ৰাইজ আনপিনে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অসমৰ কাৰণে যিমানখিনি চিন্তা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল যি ধৰণে পিছ পৰি আছে তাক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বহু ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজে হয়তো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এখন চৰকাৰ বনাই দিলে হয়তো আমি আগন্তুক দিনবিলাকত অসমৰ বহুত ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিম যি পৰিৱৰ্তনে হয়তো অসমৰ জনজীৱনৰ নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিব গতিকে ৰাইজ মই বৰ দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ কিয়নো আমাৰ আজি 4খন মিটিং আছে আমাৰ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিব মই আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাওঁ যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে যাতে কোনো ভুল নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ মহামূল্যৱান ভোটখিনি পদুম ফুলৰ চিনত দিয়ে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ সন্মিলিত প্ৰাৰ্থী পৰেশ গোলাই ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰে তাকে আহ্বান জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জনপ্ৰিয় সাংসদ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক তেখেতে যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে আমি সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে শুনিছোঁ আৰু এই বক্তব্যখিনি যাতে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত অসমৰ স্বাৰ্থত আমি কৰি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আমাৰ মাজত পাই অতি আনন্দিত হৈছো আৰু অতি গৌৰৱান্বিত হৈছো যে আমাৰ মাজত আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ উপস্থিত হৈছে। আমি তেখেতৰ এই সভাত পাই আমি আনন্দিত হৈছো। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছো তেখেতে যি বক্তব্য ৰাখিব আপোনালোকে আন্তৰিকতাৰে শুনিব আৰু তেখেতে যিখিনি মৰম চেনেহ লৈ আহিছে আমাৰ কাৰণে এইখিনি বক্তব্য কৰিব। গতিকে মই ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছো। राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। अब इसमें आवाज आ गई, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? इसको भी लगा दो ना, इधर इसको यहां कर दो। बस बस बस। यहां के सांसद श्री रामेश्वर तेली डांगरिया, बहुत ही पुराने सांसद श्री राजन गोहाइन डांगरिया और यहां के कैंडिडेट श्री तारेश ग्वाला डांगरिया, प्रदीप बोरगोहाइन डांगरिया, प्रशांत अरोड़ा डांगरिया, इंदिरा गगोई डांगरिया, पुतुल सोनवाल डांगरिया और बहन दाइशी श्याम, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले नमस्कार दुलिया जान और नमस्कार आसाम। होकुलुलुई रंगाली बिहुर हुबेशा जनालू। हमारी असमिया ठीक है? चलेगी? चलेगी नहीं, दौड़ेगी। यदि दौड़ेगी तो बोलो जय आई असम, जय आई असम, जय आई असम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक सभा को संबोधित करने के लिए आया हुआ था और यहां से उस समय कैंडिडेट थे रामेश्वर तेली और उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। अध्यक्ष रहते हुए मैंने आप सबसे अपील की थी बहनों भाइयों कि आप रामेश्वर तेली को बीएई बनाइए, इन्हें जिताइए और आप लोगों ने रामेश्वर तेली को भारी मतों से विजय दिलाई है। इसलिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। भारत की संसद में बराबर में रामेश्वर तेली को बोलते हुए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए मैं देखता हूं और सुनता हूं। मुझे फक्र होता है, मुझे खुशी होती है कि हमने जिसे सांसद बनाने की इस निर्वाचन क्षेत्र से जनता से अपील की थी, वह सांसद आज सचमुच भारत के संसद में पहुंचकर अपने क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है और खूबसूरती के साथ वह निभा रहा है। और आज मैं आपसे अपील करने आया हूं कि जैसे आप लोगों ने रामेश्वर तेली को भारी मतों से विजय दिलाया है मेरे बहनों भाइयों, वैसे ही हमारा तारेश ग्वाला भी यहां से भारी मतों से जीत कर जाना चाहिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं। जैसे रामेश्वर तेली एक तेज तर्रार नौजवान, वैसे ही तारेश ग्वाला भी इस दुलियाजान विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों ने तेज तर्रार नौजवान को मैदान में उतारा है। जहां तक असम का सवाल है, लंबे समय तक इस असम राज्य में आपने हुकूमत यदि किसी की देखी है तो केवल कांग्रेस की हुकूमत देखी है। आज के महीनों भर पहले कोई यह सोच नहीं सकता था कि असम में कोई परिवर्तन की लहर चलेगी। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप एबीपी नेल्सन का एक सर्वे आया है, उस सर्वे को उठाकर देख लीजिए।
उस सर्वे ने भी कहा है कि इस बार असम के विधानसभा चुनाव में किसी की सरकार यदि बनने जा रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब यहां पर सरकार बनना पक्का हो गया है। सरकार सचमुच एनडीए की सरकार नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि असम की जनता की सरकार बन रही है। यहां पर आपकी सरकार बन रही है मेरे बहनों भाइयों। आपने दिल्ली में हम लोगों की सरकार बनाई और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री आपने बनाया। हम लोगों ने पहला वादा किया था कि हम एक भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और जो भ्रष्टाचार करेगा उसे हम माफ नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि लगभग 2 साल का समय पूरा हो रहा है। बहनों भाइयों, भारत ही नहीं दुनिया का भी कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमारे दिल्ली की मोदी जी की सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं। यहां पर भी हमारी सरकार आप असम में बनाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से हम किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस ने इस असम को बर्बाद किया है, तबाह कर दिया है। 15 वर्षों की हुकूमत लगातार, यह कोई कम समय की हुकूमत नहीं होती है। और देखा जाए तो असम राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा सरकार असम में किसी पार्टी ने चलाई है तो वह कांग्रेस ने चलाई है। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इतने लंबे समय तक असम राज्य में सरकार चलाने के बावजूद क्या कारण है कि आज तक यहां पर गरीबी नहीं समाप्त हुई? क्या कारण है आज तक यहां पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं निकल पाया? क्या कारण है कि असम के गांवों में सड़क नहीं पहुंच पाई? लोगों को साफ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके गांवों में पक्की सड़कें पहुंच गई हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हाथ उठाकर आप लोग बताइए कि पक्की सड़कें पहुंच गई हैं कि नहीं पहुंची? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपके किसानों के खेतों की सिंचाई की व्यवस्था हो गई है कि नहीं हो गई है? नहीं हुई है। मैं जवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपने पढ़ाई लिखाई की है? और पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके दिल की हसरत रही होगी, आपके दिल की ललक रही होगी कि आपके मजबूत हाथों को रोजगार मिलेगा। क्या आप नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिला है? क्या आपके गांवों में बिजली 24 घंटे आ रही है? जहां हाथ हिलाकर बतलाइए कि बिजली आ रही है। कितने गांव में नहीं आ रही है? मीडिया के लोग देखें, हालत इतनी बदतर है जैसे लगता है कि असम में वर्षों से सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। और रात को बिजली नहीं आती है तो आप लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी। किनको तकलीफ होती है? बिजली नहीं आती है तो रात को तो किनको तकलीफ होती है? होती है? मैं भी जानता हूं बहुत तकलीफ होती होगी। दिन भर के थके हारे काम करने के बाद जब रात को आप अपने घरों में पहुंचते होंगे तो रात में अंधेरा ही अंधेरा। न आप अपने घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे, न घरवाली आपका चेहरा देख पाती होगी। इसलिए मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। इतनी हालत खराब है। और आपको मैं बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, आजादी हासिल होने के बाद यह आपका असम राज्य हिंदुस्तान के 5 जो समृद्ध और संपन्न राज्य माने जाते थे उनमें असम राज्य की गणना होती थी। लेकिन आज लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार होने के बाद असम के ऐसे हालात बन गए हैं कि आज हिंदुस्तान के 4-5 जो गरीब राज्य हैं उन गरीब राज्यों में भी किसी राज्य का नाम गिना जाता है तो आपके राज्य इस असम का नाम गिना जाता है। क्या फिर से आपको ऐसी ही सरकार चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा यहां पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोग हैं। बड़ी संख्या में असम में ऐसे लोग हैं कि जिन्हें दो समय का भोजन मुहैया नहीं हो पाता है।
बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए जैसा विद्यालय चाहिए वैसे विद्यालय उपलब्ध नहीं है। चाय बागान का जहां तक सवाल है, चाय बागान के हालात से मैं अच्छी तरह परिचित हूं और वर्षों से मैं परिचित हूं बहनों भाइयों। चाय बागान की लोगों को सभा को जब मैं संबोधित करने गया था उस समय भी मैंने कहा था प्रतीक्षा करिए, जिस दिन हमारी दिल्ली में सरकार आ जाएगी और उसके बाद जिस दिन असम में सरकार आ जाएगी, चाय बागान में रहने वालों की हालात में हम परिवर्तन करके ही दम लेंगे, हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्नीस सौ 1951 में ही प्लांटेशन लेबर एक्ट पास हुआ था, लेकिन आज तक उस पर जो अमल होना चाहिए, जो उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं असम के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किसने रोका था आपको कि प्लांटेशन लेबर एक्ट के अनुसार कार्रवाई न हो? और मैं समझता हूं प्लांटेशन लेबर एक्ट पर अमल हुआ होता तो चाय बागान में काम करने वाले लोगों के हालात में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया होता। लेकिन आज चाय बागान के लोगों के हालात को देखने जब इस देश के दूसरे कोने से लोग आते हैं, दुनिया के दूसरे देशों से लोग आते हैं, तो बहनों भाइयों, उनका कहना है कि क्या भारत ऐसा ही भारत है? क्या इस प्रकार से यहां के लोग अपनी जिंदगी जीते हैं? क्या इंसान को ऐसी ही जिंदगी जीनी चाहिए? भारत के बारे में उनकी धारणा बदल जाती है और भारत के बारे में गलत धारणा लेकर लोग वापस जाते हैं। हम चाय बागान में रहने वाले लोगों के ऐसे हालात नहीं रहने देंगे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं बड़ी संख्या में असम में ऐसे लोग हैं जिनको अपना सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान नहीं है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबको विश्वास दिलाया है 2022 आते आते हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए कोई साया न हो, कोई छत न हो, जिसका अपना घर न हो। आजादी हासिल होने के बाद 50 वर्षों तक जिस कांग्रेस ने सरकार चलाई है इसे हिंदुस्तान में, क्या वह ऐसा फैसला पहले नहीं कर सकते थे? शायद आजादी होने के 2-3 साल बाद ही उन्होंने फैसला कर दिया होता तो 2060 आते आते इस हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी शेष न बचता जिसको अपना सिर ढकने के लिए साया उपलब्ध न होता, छत उपलब्ध न होती। ऐसे बुरे हालात लोगों ने यहां के बना दिए। बहनों भाइयों, इस हालात को बदलना होगा और इस चुनाव में आप उस हालात को बदल सकते हैं। सचमुच इस असम के विकास की कुंजी यदि किसी के हाथ में है तो वह आप सबके हाथ में है, यह मैं कहना चाहता हूं। असम राज्य सबसे पहले यदि कहीं पर हिंदुस्तान में आजादी हासिल होने के बाद खोजा गया था, यही का नहरकटिया है जहां पर कि तेल खोजा गया था। यहां पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस की कमी नहीं है। यहां के लोगों के हाथों में ताकत है, कुव्वत है। यहां के लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन करने का उन्हें अवसर नहीं मिल पाता है। इसी कारण हमारे असम की हालत इतनी खराब पड़ी हुई है। जब से आजादी हासिल हुई है, जब से बांग्लादेश बन गया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का निरंतर भारत में असम और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे आना हो रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण है? क्यों नहीं आपने बांग्लादेश से जो घुसपैठिए यहां पर आ रहे हैं उनको रोकने का काम किया? क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं आपने बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर को पूरी तरह से सील क्यों नहीं कर दिया? लेकिन बहनों भाइयों, इन सब सारी चीजों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। जो आ रहा है आने दो, जो जहां जा रहा है जाने दो। क्या ऐसे देश चलता है? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी आप लोगों ने हमारे ऊपर सौंपी है।
और मैं अभी आज के कुछ ही महीनों पहले बॉर्डर का दौरा करने गया था बहनों भाइयों, और बांग्लादेश सरकार से भी हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। मैं आज आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमें थोड़ा समय चाहिए। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को हम पूरी तरह से सील कर देंगे ताकि कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत के अंदर प्रवेश न करने पाए। फर्जी नोट, फेक इंडियन करेंसी नोट भारत के अंदर आता रहा और कांग्रेस के लोग टुकटुकी लगाकर देखते रहे। मेरे बहनों भाइयों, जब फर्जी नोट, फेक करेंसी यदि दुनिया के किसी दूसरे देश से यदि भारत के अंदर आती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम करती है। लेकिन इस ओर भी कांग्रेस की सरकार ने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। यह कैसी सरकार चला रहे थे लोग, यह बात हमारी समझ के परे है। जहां तक उग्रवादी गतिविधियों का सवाल है, हमारी सरकार जो दिल्ली में बनी है चाहती है कि इस असम के अंदर अमन अमान के हालात पैदा हों, इस असम के अंदर शांति कायम होनी चाहिए, निर्दोष लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री की ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश है बहनों भाइयों, यह बताने आप लोगों को आया हूं। आए दिन उग्रवादी घटनाएं होती हैं, बराबर होती रही, लेकिन जैसे लगा कि यह कांग्रेस की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज के कुछ महीने पहले जब यहां पर 62-63 हमारे निर्दोष निरीह आदिवासी भाइयों की हत्या कर दी गई, तो उसके बाद मैं तुरंत गुवाहाटी आया था और मुख्यमंत्री जी के साथ भी बैठक करके और इनफाइट कमांड की बैठक बुलाकर मैंने कहा कि इस तरीके से किसी को निरपराध, निर्दोष और निरीह लोगों की हत्या करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, और मैं ही नहीं कह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। पिछले 18 वर्षों में उग्रवाद के मोर्चे पर सबसे बेहतर हालात यदि कायम है तो इस समय नॉर्थ ईस्ट में कायम है बहनों भाइयों। और मैं तो उग्रवाद की गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं उन नौजवानों से भी अपील करना चाहता हूं, हिंसा का रास्ता अपनाकर किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। यदि आप असम राज्य की समस्याओं का समाधान चाहते हो, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो आपको हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा, आपको हथियार छोड़ना होगा। आइए हिंसा का रास्ता छोड़िए, जो भी बात करने को तैयार है हम उससे बात करने को तैयार हैं। यह गृह मंत्री के रूप में मैं संदेश देकर जाना चाहता हूं, क्योंकि जब कोई हिंसा का रास्ता अपनाता है मेरे बहनों भाइयों, तो सचमुच बलवान आदमी नहीं मारा जाता, धनवान नहीं मारा जाता, मारा जाता है तो गरीब मारा जाता है, निर्दोष मारा जाता है। हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आपको यह भी यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब यहां पर सरकार थी, उसके पहले भी आपने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास के बारे में किसी ने चिंता नहीं की। सबसे पहले यदि सचमुच नॉर्थ ईस्ट के विकास में चिंता किसी प्रधानमंत्री ने की तो उस प्रधानमंत्री का नाम है आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कि अलग से एक नॉर्थ ईस्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बना दिया। और मैं मोदी जी के प्रति सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने भी नॉर्थ ईस्ट के विकास की चिंता करते हुए सबसे ज्यादा अधिक धनराशि 33,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन इस बार किया है। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, और जिस दिन नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पक्की सड़कें बन जाएंगी, रेल की लाइनें बिछ जाएंगी,
इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर नॉर्थ ईस्ट का विकास कोई मां का लाल रोक नहीं सकता। आपको जानकारी होगी कि बदरपुर से अगरतला तक रेल लाइन बिछ गई और आगे भी आपको याद दिलाकर जाना चाहता हूं, अगरतला से लेकर पश्चिमी बंगाल तक बांग्लादेश से होते हुए भी यह काम भी हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे ताकि रेल लाइन पूरी बिछ जाए। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर जो बहुत सारे माल की ढुलाई होती है, केवल सड़कों के माध्यम से न हो। बहुत सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, बहनों भाइयों, इन नदियों के माध्यम से भी माल की ढुलाई होनी चाहिए। केवल लोग सड़क के रास्ते ही न चलें, बल्कि वाटरवेज के माध्यम से भी लोग यात्रा करें और मालों की ढुलाई हो, ऐसे हालात होने चाहिए। और इस प्रकार के हम लोगों ने 17 वाटरवेज भी यहां पर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। यह भी आपको जानकारी देना चाहता हूं, इस पर भी हम लोग जल्दी ही अपना कोई काम शुरू करने वाले हैं। और आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। अभी ये कांग्रेस के नेता आए थे, राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, एनडीए को वोट दिया, समगढ़ परिषद को वोट दिया, इन लोगों को वोट दिया, तो यहां पर दंगे होंगे। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान के जिन राज्यों में हम सरकार चला रहे हैं, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किस राज्य में दंगे हुए हैं? लेकिन जब जब इस हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही है, सर्वाधिक दंगे यदि हुए हैं तो उन्हीं की हुकूमत में दंगे हुए हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए दंगे नहीं हुए। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1983 का नेल्ली का दंगा कितने लोगों को याद है? 1983 नेल्ली का दंगा, जरा हाथ उठाइए। फिर भी इतने लोगों को याद? नेल्ली में हजारों लोग मारे गए थे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, किसकी सरकार थी? क्यों इस प्रकार के दंगे हुए? 1984 में दंगा हुआ, सिखों का सरेआम कत्ल किया गया, किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी। और आप अपने कलंक को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बहनों भाइयों, अनाप शनाप के आरोप यह लोग लगाते हैं। और हमारे यहां के मुख्यमंत्री जी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका मैं बेहद सम्मान करता हूं। उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कह दिया कि एक्टर हैं। मैं यहां के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो बराबर एक्शन में रहता है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जो सदैव काम करता रहता है, वह नॉन एक्टर नहीं है बल्कि एक्टर है। सचमुच इस समय काम करने वाला एक्टर उसे कहते हैं जो काम करने वाला हो, और काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। यानी आपका भी दिल स्वीकार करता है कि सचमुच काम करने वाला, एक्ट करने वाला यदि कोई है प्रधानमंत्रियों में, तो उस प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। शायद इसीलिए आपने उनको कहा। दिल की बात कभी न कभी तो जुबान पर आ ही जाती है, चाहे जैसे भी कहा उन्होंने। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने सरकार चलाई है, लंबे समय तक चलाई है। जनता को यह बतलाइए कि आपने क्या किया है, उस आधार पर जनता फैसला करेगी। 2 वर्षों से हमारी सरकार है, 2 वर्षों ने हमने क्या किया है, उसको हम जनता के बीच जाकर बतलाएंगे। हम लोगों ने फैसला किया है 1 करोड़ गरीब परिवारों में जिनकी हैसियत नहीं है गैस सिलेंडर खरीदने की, मुफ्त में हम लोग गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे। यह हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। हमारी सरकार का यह फैसला है बहनों भाइयों, 2022 आते आते
यानी 6 वर्षों के अंदर आज जितनी किसान की आमदनी है उस किसान की आमदनी को हम 2 गुना कर देंगे। यह हमारी सरकार का फैसला है। यह हमारी सरकार का फैसला है कि बहनों भाइयों, स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाकर हिंदुस्तान के अधिकांश नौजवानों को, ऐसे नौजवान जो काम करने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, प्रतिभा रखते हैं, काम करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए। और मैं इस दुनिया जान के बारे में बतलाना चाहता हूं। शायद आप में से बहुत लोगों को जानकारी न हो, लेकिन हमारे पास उसका रिकॉर्ड इस समय यहां पर मौजूद है। मेरे बहनों भाइयों, यहां पर प्रधानमंत्री स्किल इंडिया के कार्यक्रम के तहत 100 नौजवानों को, दुनिया जान क्षेत्र के 100 नौजवानों को हमारी सरकार दिल्ली में आने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दी गई है। और ट्रेनिंग देने के बाद आज 100 नौजवान होटल में, टूरिज्म में, हॉस्पिटलिटी में, आज हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में वह काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार आने के बाद काम कर रहे हैं, वह मुंबई, पुणे, बंगलोर और गुवाहाटी में वह काम कर रहे हैं। यदि हमने इतने कम समय में दुनिया जान एक विधानसभा क्षेत्र में 100 नौजवानों को यदि रोजगार का अवसर मुहैया करा दिया है, तो आप यह कल्पना कर सकते हैं अभी यह शुरुआत है। आगे देखते जाइए हमारी गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ती है। इसलिए मैं अपील करने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, इस बार आप सब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बनाई है। कई दलों ने मिलकर, हमारे असम गण परिषद है, हमारे बोडो के लोग हैं, अन्य बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने फैसला किया कि हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। और यहां के मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत ही तेज तर्रार एक नौजवान जो भारत सरकार में मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल रहा है, ऐसे श्री सर्बानंद सोनोवाल को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में मैदान में उतारा। सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद, जिसके आनंद आने पर पूरा का पूरा आनंद ही आनंद, ऐसे सर्बानंद। हमारा प्रत्याशी मुख्यमंत्री का सर्वानंद है, वह सर्वनाश नहीं है। बहनों भाइयों, कांग्रेस ने सर्वनाश किया है, लेकिन हमारा प्रत्याशी सर्वानंद है जो सभी को आनंद देने वाला है, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर काम करने वाला है। और आपने यदि उसे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया मेरे बहनों भाइयों, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस असम राज्य में अमन अमान के हालात पैदा होंगे और हमारा यह असम राज्य दुनिया के अग्रणी राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। यह आपको यकीन दिलाते हुए अंत में आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी तरेश ग्वाला, कहां है तरेश ग्वाला? आइए, तरेश ग्वाला को देख रहे हैं ना? ठीक ठाक है ना? चलेंगे? एक बार बोलिए, चलेंगे कि दौड़ेंगे? दौड़ेंगे। तो एक बार मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा हाथ उठाकर हमारे तरेश ग्वाला को आप सभी आशीर्वाद दे दीजिए। और तरेश ग्वाला को मैं यह भी कहूंगा, और तरेश ग्वाला से एक मैं वचन ले लूं। तरेश ग्वाला से एक ही वचन लेना चाहता हूं कि तरेश ग्वाला और रामेश्वर तेली जो यहां के सांसद हैं, रामेश्वर जी कहां हैं? रामेश्वर जी, आप दोनों, जनता ने कहा है कि इन्हें चुनाव जिताएंगे, लेकिन थोड़े बहुत वोटों से मत जिताइएगा, जरा भारी भरकम वोटों से जिताइएगा। पक्की बात पक्की ना? भारी भरकम वोटों से जिताइएगा। तरेश ग्वाला को यदि आप जिताते तो मैं तरेश ग्वाला से एक वचन लेना चाहता हूं, और रामेश्वर जी से भी, कभी न कभी 4, 6, 8 महीने, 10 महीने के बाद जब भी मौका मिले, एक बार मुझे फिर से इसी विधानसभा क्षेत्र में बुला लेना। एक बार फिर से मुझे इस विधानसभा क्षेत्र में बुला लेना।
और बहनों भाइयों, यदि तरेश ग्वाला के जीतने के बाद मैं दोबारा आना चाहूंगा तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी